So in last lecture we have completed with simply support two-way slab design. I think all this we have covered with detailing. Now today we will start with two-way restraint slab design. So as discussed in last lecture that restraint slab means when you are providing or when there is some provision to take care about the corners stresses, that slab is known as restraint slab. Means you are going to provide additional reinforcement at the four corners so that corners cannot lifted up, right? So that is called the restraint slab. So for restraint slab design, again we require to see the annexure D. So this is our annexure D, right? So here this is annexure D. Slab spanning in two direction means two-way slab, and this clause is for restraint slab, right? So when the corners of a slab are prevented from lifting the slab may be designed as per D1.1 to 1.11. From this D1.1 to D1.11. So all these clauses are related to restraint slab. Right, means as I discussed in last lecture also, that whenever this slab is having some loads onto it, this two-way slab get deflected in both the direction x and y, and due to that the corners, all four corners of the slabs are facing some stresses. That stresses are twisting or some moments are created, and if you are providing additional reinforcement at four corners, then that slab is known as restraint slab. So that design we are going to do. Now the moment equation will remain same as we done yesterday for the simply support slab, two-way slab. So this will remain same, alpha x w l x square, alpha y w l x square. Now this alpha x and alpha y for restraint slab you require to take from table number 26. तो सिंपली सपोर्ट में हमने देखा था दैट 27 में से हमने अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई की वैल्यू ली थी, बट फॉर रिस्ट्रेंट स्लैब यू रिक्वायर टू टेक अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई फ्रॉम टेबल नंबर 26. So this is table number 26. If you can see, there are 9 cases are mentioned over here. Type of panel and moment consider. What is this? I will explain. Then see over here, shorter span coefficient alpha x is over here. Longer span coefficient alpha y is over here. So this alpha x value is depend on the Ly by Lx ratio. So this 1.1 up to 2 is Ly by Lx ratio. So depend on your Ly by Lx ratio, you can take alpha x value. And this last column is for alpha y. So only last column is for alpha y. Now here if you can see, the type of panels are given. Interior panel, it is mentioned interior panel, then one short edge continuous, then one long edge discontinuous, two adjacent edges discontinuous. All these are the typical panels and supporting conditions given, and last is four edges discontinuous. So these are the number of cases given for the two-way slab. Now I will explain you how you can consider or how you can see that which case number is applicable for your design. Right now we are doing the isolated two-way slab design. Isolated two-way slab design means what? The slab which is discontinuous at all four sides.
that is called the discontinuous edges at all four sides. सो व्हेन यू आर डीलिंग विथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जब भी आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हो, सो फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर उसका आप प्लान देखोगे विच इज़ हैविंग स्लैब पैनल्स एंड ऑल टुगेदर, तो सपोज कोई एक बिल्डिंग है, इसका ये प्लान है, राइट. नाउ फ्रॉम द आर्किटेक्चर प्लान यू रिक्वायर्ड टू डू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग. स्ट्रक्चरल ड्राइंग मीन्स यू रिक्वायर्ड टू प्लेस योर बीम्स, कॉलम्स, स्लैब कहाँ पे आएगा, वो सब आपको वो ड्राइंग में दिखाना पड़ता है. सो सपोज ये है आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग जहाँ पे ये सब है आपके स्लैब पैनल्स, फिर आपका आएगा यहाँ पे कॉलम्स जा और कॉलम, दो कॉलम को ज्वाइन करते हुए बीम्स. अभी फॉर इजी पर्पज आई एम ड्राइंग ऑल द कॉलम्स विथ सर्कुलर सेक्शन. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सर्कुलर सेक्शन ही डिज़ाइन करना है कॉलम का, राइट. सो फॉर इजी पर्पज मैं इजीली ड्रॉ कर सकूँ, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग द सर्कुलर सेक्शन. So this is called the grid plan or center line plan or structural plan. Why structural plan? Because from this plan you can get कि आपका बीम कहाँ पे है, कॉलम कहाँ पे है और स्लैब पैनल कहाँ पे है. तो देखो यहाँ पे दिस आर द कॉलम्स, ये जो मैंने बताया दिस ऑल आर द कॉलम्स. देन द बीम इज कनेक्टेड विद द कॉलम्स. तो ये है आपका बीम, ये पूरा आपका कंटिन्यूस बीम है. यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस बीम है, ये भी एक कंटिन्यूस बीम है, ये भी कंटिन्यूस बीम है, यहाँ पर भी ये डायरेक्शन में भी बीम्स है. तो दिस ऑल आर द मेन बीम्स बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द कॉलम, राइट. एंड द पैनल विच इज क्रिएटेड once you define your columns and beams, that panels are your slab panel. तो यहाँ पे देखो ये एक स्लैब पैनल बनी, इतना स्लैब का टुकड़ा मिला हमें. यहाँ पर भी है एक स्लैब, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ स्लैब. Likewise this all are the slab panels created for your building, right. Now if you can see, depend on your Ly by Lx ratio, you can define कि ये स्लैब वन वे स्लैब की हुई है या टू वे स्लैब की पैनल हुई है, राइट. सो इफ़ योर Ly by Lx रेशियो, मैंने आपको कल भी बताया था, इफ Ly by Lx रेशियो लेस देन और इक्वल टू 2 तो टू वे स्लैब, ग्रेटर देन 2 तो वन वे स्लैब. सो डिपेंड ऑन दैट आप डिफाइन करो कि आपका वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है. नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ स्लैब, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्लैब, वेदर इट इज वन वे और टू वे, ये होगा आपका कंटिन्यूअस स्लैब. क्यों? बिकॉज हर एक स्लैब पैनल कंटिन्यू है, आइदर दिस साइड और दिस साइड और दिस साइड, राइट. तो ये कंटिन्यूअस स्लैब की डिज़ाइन होती है. हमने जो अभी वन वे स्लैब किया और लास्ट लेक्चर में टू वे स्लैब किया, दैट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस स्लैब डिज़ाइन. डिसकंटिन्यूअस स्लैब डिज़ाइन मीन्स व्हाट, कि हमने क्या अज्यूम किया कि एक ही रूम है हमारा. सपोज एक कोई बिल्डिंग है जिसका एक ही रूम है, एक ही रूम है, सो एक ही स्लैब है उसका. तो यहाँ पर भी वो डिसकंटिन्यू है, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यू, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यू एंड यहाँ पर भी डिसकंटिन्यू. So this is called the discontinuous slab design or isolated slab design. Isolated slab means what? Which is not continue in any of the direction. तो वो होता है isolated slab. Whether it is one way or two way, पर अभी जो ये चैप्टर में हम जो डिज़ाइन करते हैं that is isolated slab design. But when you will deal with the multi-story building design where all the slabs are considered to be the continuous slab. तो कंटिन्यूस स्लैब की डिज़ाइन कैसे करनी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू एट द टाइम ऑफ मल्टी स्टोरी डिज़ाइन, राइट. द मेथडोलॉजी विल रिमेन सेम, आई मीन द फंडामेंटल विल रिमेन सेम, ओनली द चेंज इन द सम वैल्यूज. सो दिस वे यू कैन गेट द दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस स्लैब एंड डिसकंटिन्यूस स्लैब. तो हमने अभी तक जो भी किया है वो डिसकंटिन्यू या आइसोलेटेड स्लैब की डिज़ाइन की है, राइट. तो वन वे भी आइसोलेटेड था ऐसा,
एक स्लैब है वो डिसकंटिन्यूस है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा वन वे स्लैब, वन वे आइसोलेटेड स्लैब। हमने कल जो किया दैट इज ऑल्सो आइसोलेटेड स्लैब, बिकॉज वो मैंने दिखाया था आपको कि ओनली दिस स्लैब इज देयर एंड ऑल फोर साइड्स आर डिसकंटिन्यूस। तो ये भी हमारे पास आइसोलेटेड स्लैब, राइट। अभी हम रिस्ट्रेन स्लैब की डिजाइन करते हैं, तो रिस्ट्रेन स्लैब ऑल्सो we will consider as isolated. Isolated means it is not continue at any of the side. So if two-way slab, restraint slab, isolated slab की डिजाइन कर रहे हो, then your case number will be the case number 9. 4 edges discontinuous. स्लैब कैसे बनता है? 4 एजिस से बनता है स्लैब। 1, 2, 3 and 4. These are the edges of slab. So if all 4 edges are discontinuous, then it is called the isolated slab, isolated one way or two way slab, or discontinuous slab, right? So if 4 edges discontinuous, then you need to consider this case number 9. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Right. Now if not, if I mean edges are not continuous, or sorry not discontinuous, तो ऐसा होता है। ये देखो यहाँ पे सपोज ये पैनल नंबर 1 है, स्लैब नंबर 1, तो ये देखोगे तो ये स्लैब की 4 जो एजिस है, वो 4 एजिस में से 2 एजिस आर डिसकंटिन्यू, ये भी डिसकंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू, बट दिस 2 आर द कंटिन्यू। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, yes, ma'am. राइट। तो जैसे ये है सेकंड, तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये डिसकंटिन्यू है, बट ये यहाँ से कंटिन्यू है, यहाँ से कंटिन्यू है, यहाँ से कंटिन्यू है। तो जब भी आप ये स्लैब पैनल की डिज़ाइन करो 1 की, तो वो कंटिन्यूस स्लैब बोला जाता है, वेदर इट इज़ वन वे और टू वे, इसको भी कंटिन्यूस स्लैब बोला जाता है, राइट। तो अभी हम सिर्फ आइसोलेटेड स्लैब की डिज़ाइन करते हैं। मल्टी स्टोरी में आई विल एक्सप्लेन यू द हाउ टू डू द डिसकंटिन्यूस स्लैब डिज़ाइन, और ये प्लान कैसे बनता है वो भी मैं आपको मल्टी स्टोरी में करवाऊंगी। नाउ अभी ये जो हमारे पास दूसरे सब है, ये केस नंबर 1 to 8, वो कैसे बनते हैं, जस्ट फॉर अ अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम ड्राइंग वन प्लान जब आर्किटेक्चर प्लान होता है उसके बाद यू नीड टू प्रिपेयर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो ये मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना दिया, राइट। एंड हियर for the easy purpose I am drawing for showing the columns, right? For easy purpose I am drawing all the columns with circular, with the same dimension. I will explain you at the time of multi-story design that how to decide where to put the columns, right? So this is the building plan of a building. Now over here if you can see,
This all are the column. This is also column, so I am giving the name C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। ये है मेरे कॉलम के नंबर। और दो कॉलम को ज्वाइन करते हुए क्या होगा, बीम, राइट। तो ये है मेरे सब बीम्स। तो ये है मेरा बीम B1, दिस इज B2, दिस वन इज B3, ये पूरा, राइट। दिस इज B4, दिस वन इज B5, फिर ये डायरेक्शन में ये है B6, नाउ दिस इज B7, दिस वन इज B8, ये वर्टिकल B9, B10 एंड B11। तो ये है सब मेरे बीम्स, राइट। और बीम और स्लैब को मिला के आपका स्लैब पैनल बनता है। देखो यहाँ पे जब हमने बीम कॉलम को प्लेस कर दिया, उसके बाद जो भी ये स्पेस होता है, जो भी ये एजेस बनते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड द स्लैब पैनल्स। ठीक है, अभी उसके लिए मैं क्या करती हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ, मैं डायमेंशन लिखती हूँ। सपोज दिस इज 4 मीटर, ये स्क्वायर दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्स 4 मीटर, 6 मीटर, राइट। दिस इज ऑल्सो 6 मीटर, ये मैं 5 मीटर लिख लेती हूँ जस्ट फॉर अ रैंडम। ये दिस 3 मीटर, राइट। सो आपको यहाँ पे कितनी पैनल दिख रही है, कैन एनीवन टेल मी कितनी पैनल्स दिख रही है यहाँ पे? हाउ मेनी पैनल्स यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई? 4 पैनल्स, Yes, स्लैब पैनल S1, ये पूरा ये S2, ये S3 और ये S4। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेरी देखो 4 पैनल बने। अभी मुझे ये मेरा सब भी स्लैब ना कंटिन्यूअस स्लैब है। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि ये पैनल्स जो 1 to 8 है वो क्या है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। नाउ वेरी फर्स्ट वी रिक्वायर टू फाइंड Ly by Lx रेशियो। चलो स्लैब पैनल 1 के लिए क्या होगा Ly by Lx रेशियो? ये S1 पैनल है, 1. हाँ ये है S1 पैनल, मतलब ये इतना, ठीक है। तो उसका हमें क्या चाहिए वैल्यू, तो 4 मीटर बाय 4 मीटर 1। इज इट 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब? 2A. 2 वे स्लैब, राइट। अभी 2 वे स्लैब को कैसे दिखाना है ड्राइंग में, हाउ यू कैन शो द 2 वे स्लैब इन ड्राइंग? देखो जब भी 2 वे स्लैब आपको दिखाना हो ड्राइंग में, कैसे पता चलेगा कि ये 2 वे स्लैब है? तो आपको इस तरीके से साइन बतानी है। arrow. अगर आप कोई साइट पे गए हो तो आपको इस तरीके से दिखा होगा। Yes, इज इट ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. है ना? तो ये क्या साइन बताता है? दिस इज इंडिकेटिंग द reinforcement टू बी प्रोवाइडेड। ये क्या बताता है? reinforcement। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन में reinforcement है, और यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में भी reinforcement है। अगर सिंगल मतलब 1 वे स्लैब है तो इधर 1 वे स्लैब में देखो ऐसे भी होता है। अगर ये सपोज 1 वे स्लैब बना है, ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट शॉर्टर स्पान में होगा। सपोज ये 3 मीटर है तो मेन रेनफोर्समेंट शॉर्टर स्पान में होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाना है,
ये डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट है। अगर वन वे स्लैब ऐसा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस टू आर द वन वे स्लैब। चलो, ये S2 स्लैब है। S2 स्लैब भी कौन सा आता है, चेक करो। Ly/Lx रेशियो 6/4। वन वे और टू वे? So also 2. टू वे स्लैब, मैम टू वे। Yes, ma'am. राइट। यस यस। तो देखो यहाँ पर भी मैंने ये टू वे स्लैब का सिंबल बनाया। देखो चलो, S3 6/5, 2A. अभी टू वे स्लैब ही। सभी टू वे स्लैब है, ठीक है। अगर वन वे होता तो हमने नीचे मैंने जैसे सिग्नेचर बताया वैसे उसको करना है। अभी नाउ पॉइंट इज कि जब अभी हमें पता चल गया ये टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, रिस्ट्रेन की डिजाइन करनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, रिस्ट्रेन स्लैब की, नॉट सिंपली सपोर्ट, रिस्ट्रेन स्लैब की डिजाइन। तो फिर हमें कैसे देखना है पैनल? तो यहाँ पे देखो, ये S1 पैनल की जब आप डिजाइन करते हो तो आपको देखना है कि ये कौन से केस नंबर आता है टेबल नंबर 26 में। तो हमें क्या देखना है कि ये जो S1 स्लैब है विच इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम दिस साइड, discontinuous from this side, continue in this direction, continue in this direction। तो हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट चाहिए या ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे होगा which directly or you can say the more relevant to our case। तो देखो कैसा है, यहाँ पे इंटीरियर पैनल, हमारा ये इंटीरियर पैनल नहीं है, ये बाहर का है, कॉर्नर का है। इंटीरियर पैनल किसे बोलते हैं? सपोज यहाँ पर भी एक मैंने स्लैब पैनल डाल दिया होता और यहाँ पर भी, तो ये होता मेरा इंटीरियर पैनल। ये कितना रेशियो, आर यू गेटिंग दिस? इंटीरियर पैनल किसे बोलते हैं? जो एकदम बीच का जो पैनल होता है वो। चलो, अभी इंटीरियर पैनल तो नहीं। वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। हमारा कौन सा है? ये टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। ये है दो एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यू। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. है ना, तो ये है मेरा टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। बाकी कोई मैच नहीं होता है। देखो, टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, तो हमारा तो दोनों एजेस सेम है। टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, थ्री एजेस डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे जैसे आप पैनल को देखोगे आप यू विल रियलाइज दैट विच पैनल और केस नंबर इज मोर रिलेवेंट टू योर पैनल, राइट। सो सेम वे यू कैन कंसिडर योर रीजन। अभी यहाँ पे देखो ये है, अभी एक और मैं ड्रॉ करूँ तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। चलो, यहाँ पर भी है। अभी नाउ S2 कॉलम, सॉरी S2 स्लैब, वो क्या है? देखो 6 मीटर में वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब में वो कंटिन्यूअस है। तो एक जो लॉन्ग एज है उसमें वो डिसकंटिन्यू है, तो यहाँ पे ये आएगा वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. S2 के लिए, राइट। तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ता है, दिस रिक्वायर सम प्रैक्टिस, कि आपको देखना है कि कौन सा मोर रिलेवेंट है। नाउ इफ यू कैन सी ओवर हियर कि चलो आपने केस नंबर डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पे देखो दो तीन चीज लिखी है, नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूअस एज, पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पान। तो ऐसी कोई पैनल है वहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ मोमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ पे जब देखोगे 4 एजेस डिसकंटिन्यू तो सिर्फ आपको पॉजिटिव मोमेंट दिख रही है यहाँ पे, राइट। नाउ व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस इज व्हेन यू हैव means 4 edges discontinuous like this, it will behave like a simply support। तो उसका डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, तो ये सैगिंग डिफ्लेक्शन है।
तो ये पॉजिटिव मोमेंट ही आएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर जब कंटिन्यूअस मेंबर होता है तो कंटिन्यूअस मेंबर में बीच बीच में सपोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये स्लैब S1 है, ये स्लैब S2 है, तो S1 S2 के बीच में ये सपोर्ट में कॉलम भी है, ये बीम भी है। तो whenever supports are there, supports will give the negative moment, राइट। तो उसकी वजह से आपका स्लैब में सपोर्ट, जहाँ जहाँ सपोर्ट होगा कंटिन्यूअस स्लैब में, वहाँ पे नेगेटिव मोमेंट आती है। तो वो नेगेटिव मोमेंट को भी आपको कोएफिशिएंट लेके उसकी मोमेंट फाइंड करनी है, उसके रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, राइट। तो वो कंटिन्यूअस स्लैब की डिज़ाइन में हम देखेंगे। बट ओवर हियर इफ आई वांट टू ड्रॉ द डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ ऑल दिस स्लैब, ये सभी स्लैब का अगर मैं डिफ्लेक्शन पैटर्न ड्रॉ करूं तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो ये होगा यहाँ से सैगिंग डिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे ये कंटिन्यूस एज आया मतलब होगिंग, फिर से यहाँ पे ये सैगिंग, यहाँ पे कंटिन्यूस आया होगिंग। तो ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन पैटर्न फॉर S1 S2, ठीक है। ये डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन में मुझे देखना, देखो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ से तो जैसे हमने यहाँ पे S2 स्लैब में देखा था, S2 स्लैब का क्या है, मैंने क्या बोला था, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, S2 स्लैब वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे फिर से सैगिंग, ये होगी, फिर से ये सैगिंग, लाइक दिस। आपको ये पूरा जो स्लैब है उसका डिफ्लेक्शन पैटर्न ड्रॉ करना होता है, लाइक दिस। सो दिस वी विल सी एट द टाइम ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो नेगेटिव मूवमेंट आ रही है, ये जगह पे, यहाँ पे ये पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है। तो कहीं पे पॉजिटिव है तो देखो यहाँ पे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी लिखा है। ये देखोगे यहाँ पे टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूस, अगर ऐसी कोई पैनल आई तो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव मूवमेंट नहीं आती है, देखो यहाँ पे डैश डैश लिखा है, ठीक है। थ्री एजेस डिसकंटिन्यूस होगा तो यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव मूवमेंट नहीं आती है। वो कैसे पता चलेगा आपको, ऐसा ये डायग्राम ड्रॉ करना है, जहाँ जहाँ सपोर्ट आता है वहाँ पे होगी बताओ, और बाकी के मिड स्पान में सैगिंग बताओ। तो ऑटोमेटिक ये डायग्राम खुद से बना के यू कैन वेरीफाई विद द वैल्यू कि यहाँ पे वैल्यू आती है कि नहीं आती है। यहाँ पे देखो वाई डायरेक्शन में नेगेटिव मोमेंट नहीं आती, यहाँ पर भी वाई डायरेक्शन में नेगेटिव मोमेंट नहीं आती, राइट। सो दिस वे यू कैन गेट द कोएफिशिएंट। इज इट क्लियर एवरीवन? दिस Yes, रिक्वायर्ड ma'am. सम प्रैक्टिस, Yes, ये ma'am. थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कोई भी प्लान दे तो प्लान में आपको एक्चुअली क्या करना होता है। देखो सपोज ये है मेरा, एक और मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, एक ये है, फिर दूसरा मैंने यहाँ पर ऐसा एक ले लिया, ठीक है, और एक और पैनल चलो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ऐसा कोई प्लान है। और यहाँ सब आपका कॉलम है, सब आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, अभी मुझे इसका ये स्लैब्स है मेरे सब, ये है मेरा एक स्लैब 1, दिस इज स्लैब 2, दिस इज स्लैब 3,
एक और मैं ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिस इज स्लैब 4 और सभी जगह पे हमारा कॉलम है। अब इसका मुझे अगर डायग्राम ड्रॉ करना है डिफ्लेक्शन पैटर्न, तो यहाँ पर ही मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोर्ट की वजह से थोड़ा हॉगिंग होगा, फिर साइकिल सपोर्टेड हॉगिंग, फिर ये साइकिल, ये एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे कैसे होगा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर ये S1 के लिए यहाँ पे जो सपोर्टिव है, तो ये है उसका ये डायग्राम। और ये साइड पे कैसा होगा, साइकिल, ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा, साइकिल। ये S4 है, यहाँ पर भी ये साइकिल होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइकिल, ये सपोर्ट पे होगी, फिर साइकिल। तो देखो कहाँ पे पॉजिटिव आया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट। सो दिस वे जो भी प्लान है उसका उसके ऊपर से आपको डिफ्लेक्शन पैटर्न ड्रॉ करना आना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जब भी आपने स्लैब देखा होगा साइड पे भी, अगर बहुत सारे स्लैब है तो जहाँ जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे स्लैब पैनल चेंज होती है, वहाँ पे टॉप में भी रेनफोर्समेंट बार दिखते होंगे आपको। तो वाई इट इज, बिकॉज एट सपोर्ट नेगेटिव मोमेंट्स आर क्रिएटेड। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ तो ये है, आपको यहाँ से देखना है। अदर देन दैट उसके अलावा क्या चेंज है, तो यहाँ पे टॉर्शन रेनफोर्समेंट। रिस्ट्रेंट स्लैब में यू रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द torsion reinforcement. Now what is this torsion reinforcement? Torsion reinforcement are generally provided at all four corners. मतलब if this is your slab panel, then all four corners are having the reinforcement. In addition to your middle strip और edge strip के reinforcement के अलावा, the four corners are having some additional reinforcement which is known as torsion reinforcement. और टॉर्शन रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन कैसे करनी है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है दैट व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ टॉर्शन रेनफोर्समेंट। मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स ड्रॉ किए हैं, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर यहाँ पे एरिया, ये एरिया कितना होना चाहिए, कितने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं टॉर्शन के, वो भी ये क्लॉज में दिया है, राइट। सो दिस वे यू कैन डिज़ाइन द torsion reinforcement also. फिर यहाँ पे क्या लिखा है, torsion reinforcement equal to half that described in D1.8 shall be provided at corners contained by edges over one of the which slab is continuous. अभी इसका मतलब मैं ये फिगर में बताती हूँ। देखो over here if you are designing this slab, ये continuous slab की अगर आप डिज़ाइन करते हो, so at that time you required to provide the torsion reinforcement. अभी torsion reinforcement कहाँ होते हैं, मैंने आपको बताया that torsion reinforcement are provided at the corners. तो अगर ये S1 स्लैब है तो उसका 4 कॉर्नर यहाँ पे है, जैसे 1 2 3 एंड 4, ये 4 कॉर्नर है, ठीक है। तो चारों कॉर्नर में टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी टॉर्शन रेनफोर्समेंट 4 कॉर्नर पे, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4. तो वो क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि when your slab is continuous and in any of the direction,
then the area of torsion reinforcement will reduce. कितना reduce होगा? 50% reduce होगा. So whatever is the area of steel at this corner, क्योंकि ये कॉर्नर डिसकंटिन्यूस है तो ये कॉर्नर में टोटल एरिया ऑफ स्टील होगा बट ये जो कॉर्नर है सेकंड कॉर्नर वहाँ पे आपका स्लैब कंटिन्यूस है तो यहाँ पे कितना होगा? एरिया ऑफ टॉर्शन रेनफोर्समेंट हाफ हो जाएगा. सो AST/2 ये पूरा ये इतना AST/2 हो जाएगा. यहाँ पर भी देखो थर्ड कॉर्नर है वो यहाँ पे कंटिन्यूस है तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे टॉर्शन के जो रेनफोर्समेंट होंगे वो कितना होगा? AST/2. मतलब जितना यहाँ पे प्रोवाइड किया है उससे आधा यहाँ पे प्रोवाइड करना है. यहाँ पर नाउ ये फोर्थ नंबर का कॉर्नर का क्लॉज भी है वो क्या है? देखो torsion reinforcement need not be provided at any corner containing by edges over both of which the slab is continuous. तो यहाँ पे देखोगे तो ये फोर्थ कॉर्नर ऐसा है कि ये भी यहाँ पर भी कंटिन्यूस है और वो यहाँ पर भी कंटिन्यूस है तो यहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग टॉर्शन रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर 4. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर हुआ ना? ये कैसे जो स्लैब पैनल दोनों साइड पे कंटिन्यूस है वहाँ पे वो कॉर्नर पे टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज सिंपल लॉजिक. अगर आपके पास बहुत सारी पैनल्स और बीच की पैनल ऐसी होगी जो दोनों साइड पे कंटिन्यूस होगी तो देयर इज नो चांस ऑफ लिफ्टिंग अप और having the stresses at that point because all the surrounding slabs are giving support to each other. That's why the corners will not lifted up. But yes, the corner जो भी कॉर्नर के स्लैब है वहाँ पे तो आपको टॉर्शन रेनफोर्समेंट आएगा ही. ठीक है. So this is about the two difference from your simply supported slab to restrained slab. तो डिज़ाइन प्रोसेस सेम है. देखो यहाँ पे मैं सिर्फ बताती हूँ आपको. अगर सेम ये डेटा हम ले ले 4.5 6.3 LY/LX लाइव लोड फ्लोर फिनिश तो कहाँ पे चेंज आएगा? थिकनेस ऑफ स्लैब ये सब कुछ सेम रहेगा. लोड ऑन स्लैब दैट विल ऑल्सो रिमेन सेम. वेयर विल बी द चेंज? दिस मोमेंट विल चेंज. मोमेंट में अल्फा एक्स और अल्फा वाई वैल्यू कौन सी आएगी? देखो अवर LY/LX रेशियो सिंपली सपोर्ट का क्या था? 1.4. तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? केस नंबर 9 LY/LX रेशियो 1.4 मतलब ये 1.4 के लिए दिस इज योर अल्फा एक्स 0.085 and this one is your alpha y 0.056. Is it clear everyone? Yes, ma'am. So for Yes, ma'am. your restraint slab, alpha x is 0.085, alpha y is 0.056. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ for restraint slab, alpha x is equal to 0.085. and alpha y is equal to 0.056. आप भी अपनी नोटबुक में लिख लेना. For case number 9, table number 26. ठीक है. तो बस ये अल्फा एक्स अल्फा वाई की लिए यू रिक्वायर टू फाइंड मोमेंट mx my. फिर उसके लिए रेनफोर्समेंट फाइंड कर लो, एज स्ट्रिप फाइंड कर लो, डिफ्लेक्शन का चेक कर लो. ठीक है. इन एडिशन टू दिस यू रिक्वायर टू डू द टॉर्शन रेनफोर्समेंट डिज़ाइन. टॉर्शन की रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन करनी है तो वो कैसे करनी है? देखो ये है. तो यहाँ पे क्या लिखना है?
torsion reinforcement shall be provided at any corner where the slab is simply supported on both edges meeting at that corner. It shall consist of top and bottom reinforcement. अब यहाँ पे क्या होता है, torsion reinforcement क्या होता है, मैशिंग होता है. मैशिंग मतलब कॉर्नर पे आपको ये स्लैब है तो यहाँ पे आपको एरिया मिलेगा, ये एरिया. तो ये एरिया कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, सॉरी यहाँ पे लिखा है 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पान. मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पान मतलब LX. दिस इज ऑल्सो 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पान LX. मतलब आपके पास एक स्क्वायर बना, वो स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, LX/5. तो ये आपको जगह मिल गई कि कहाँ पे आपको टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है. तो ये LX/5 में आपको 4 कॉर्नर पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं टॉर्शन के. अभी कितने प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखा है द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच ऑफ दिस 4 लेयर्स शैल बी 3/4 ऑफ एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम मिड स्पान. यहाँ पे लिखा है टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट. मतलब क्या हुआ कि पहले आपको ऐसे लेयर्स में बार रखने हैं. यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ. सपोज ये है आपका LX/5 का कॉर्नर. दिस इज ऑल्सो LX/5. दिस वन इज ऑल्सो LX/5. ठीक है. तो कैसे बार रखने हैं, तो आपको बॉटम में बार रखने हैं पहले ऐसे, डिज़ाइन करनी है हमें. तो ऐसे बार्स मिलेंगे, वो आपको थ्रू आउट LX/5 में रखना है. उसके ऊपर आपका आएगा टॉप रेनफोर्समेंट. तो ऐसी मैशिंग होगी. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये स्लैब पैनल है आपका, ये है उसका 4 कॉर्नर्स. आइसोलेटेड है तो चारों 4 कॉर्नर में आपको रेनफोर्समेंट आएगा. दिस इज योर LX/5. इसका एनलार्ज व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है. तो आपका रेनफोर्समेंट यहाँ पे तो है ही, ये तो सब रेनफोर्समेंट है. इन एडिशन टू दैट आपको यहाँ पे मैशिंग प्रोवाइड करनी है. पहले बॉटम की, फर्स्ट बॉटम रेनफोर्समेंट, उसके ऊपर आएगा टॉप रेनफोर्समेंट. राइट. तो यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट, each with layers of bars placed parallel to the side extending minimum distance of 1/5. और ऐसा. अभी ये एरिया कितना लेना है, ये टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट है तो यहाँ पे ये पूरा एरिया कितना होना चाहिए इसका. तो यहाँ पे क्या लिखा है, कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ईच 4 लेयर्स विल बी 3/4 ऑफ द एरिया. 3/4 ऑफ द एरिया का मतलब क्या हुआ, दिस AST इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन रेनफोर्समेंट. मतलब यहाँ पे जो आपने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं मिडल स्ट्रिप में, उसका जो भी एरिया आया है वो है आपका एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट. उसका 3/4 लेना है आपको यहाँ पे. Is it clear everyone? Yes, ma'am. मतलब आप जो मिडल के रेनफोर्समेंट बार फाइंड करते हो, ये मोमेंट से जो भी आपको मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आता है उसका 3/4 लेना है आपको यहाँ पे. तो उसका जो भी एरिया आया हो उसको आपको टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट में उसको अप्लाई करना है. तो ऐसी 2 जाली होगी. एक्स डायरेक्शन में पहले बॉटम के बाद,
उसके ऊपर ये वाई डायरेक्शन, इसके ऊपर एक फिर से टॉप रेनफोर्समेंट के लिए, मतलब उसके ऊपर फिर से एक्स डायरेक्शन के और वाई डायरेक्शन का। तो ऐसी दो जाली होगी, टॉप एंड बॉटम बोथ। इज इट क्लियर एवरीवन? तो देखो यहाँ पे किया है, एरिया ऑफ टॉर्शन स्टील कितना, 3/4 मतलब 0.75 ऑफ एरिया ऑफ स्टील, जो मिडल में आप फाइंड करोगे वो, तो वैसे एरिया मिल जाएगा आपको। अभी कहाँ प्रोवाइड करना है आपको इसको, तो देखो 8 mm बार प्रोवाइड किया मैंने, 8 mm बार, तो उसका स्पेसिंग फाइंड किया है। दिस इज एरिया ऑफ 1 बार, 5/4 8 स्क्वायर, 5/4 8 स्क्वायर। ये सिंपल इक्वेशन यूज किया है स्पेसिंग फाइंड करने का। तो मुझे टोटल एरिया कितना चाहिए, 328। एरिया ऑफ 1 बार इज 5/4 d स्क्वायर इंटू 1 मीटर के लिए उसको कितना स्पेसिंग आएगा, मतलब 1000, तो 152 का स्पेसिंग आएगा। साइज ऑफ मैशिंग LX/4, LX/5, LX/5 का जो मैशिंग है ये LX/5, दिस इज ऑल्सो LX/5, तो ये 1032। ठीक है, तो यहाँ पे 8 mm के बार रखने हैं और 8 mm के बार 150 के डिस्टेंस पे थ्रू आउट LX/5 में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी बस सिर्फ इतना ही 2 लाइन का कैलकुलेशन है फॉर द टॉर्शन रेनफोर्समेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. और फिर इस तरीके से उसको आपको डिटेलिंग बतानी है। देखो ये डिटेलिंग में क्या है, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस, मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, आई विल एक्सप्लेन यू कि ये जो है, पहले रेड कलर के जो बार है दैट इज योर मेन रेनफोर्समेंट फॉर वाई डायरेक्शन। ऑरेंज कलर के बार है वो है मेन रेनफोर्समेंट मिडल स्ट्रिप के एक्स डायरेक्शन के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये एकदम लाइट येलो कलर का एक बार दिख रहा है यहाँ पे ये, तो ये है आपका एज स्ट्रिप रेनफोर्समेंट। यहाँ पर भी देखो एज स्ट्रिप रेनफोर्समेंट, दिस इज ऑल्सो एज स्ट्रिप रेनफोर्समेंट। ठीक है, फिर ये जो डॉटेड किया है ब्लू कलर से वो क्या है, पार्टीशन बिटवीन योर एज स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप। वो कैसे करना है वो मैंने कल आपको बताया। एंड दिस 4 कॉर्नर्स, देखो यहाँ पे 4 कॉर्नर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सो दिस आर द टॉर्शन रेनफोर्समेंट। अभी देखो टॉर्शन रेनफोर्समेंट कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है 1035। LX/5 करना है आपको, LX/5 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 1035/1035। देखो यहाँ पर भी 1035 लिखा है। और बार्स कितने प्रोवाइड करने हैं, तो ये भी यहाँ पे लिखा है, 8 डाया 150 सेंटर टू सेंटर बोथ डायरेक्शन एट टॉप एंड बॉटम LX/5 के डिस्टेंस में। यहाँ पे देखो एरो किया है। यहाँ पे देखो थिकनेस ऑफ स्लैब। इज इट क्लियर? सो सिंपली सपोर्ट की ही डिजाइन किया है हमने, ओनली देयर इज चेंज कहाँ पे, ये रिस्ट्रेन स्लैब के लिए आपको केस नंबर 9 टेबल नंबर 26, और आपको इन एडिशन टू दैट यू रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द टॉर्शन रेनफोर्समेंट। टॉर्शन रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन आप सिर्फ 2 स्टेटमेंट में करनी है। देखो यहाँ पर लिखा है, एरिया ऑफ टॉर्शन रेनफोर्समेंट फाइंड करो, डायामीटर चूज करो, और उसके लिए स्पेसिंग डायरेक्ट SP16 में से भी फाइंड कर सकते हो, ये इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो, बस उसको आपको प्रोवाइड करना है। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, provide 8 mm diameter 150 center to center both direction means x and y both, x में भी और y में भी both direction, for a length of 1035। ये 1035 क्या है, मैशिंग का आपका डायमेंशन, दिस इज 1035।
Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At top and bottom. टॉप के लिए भी जाली आएगी, बॉटम के लिए भी जाली आएगी. ठीक है, इतना आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो, फिर यही एग्जांपल है, उसको आपको करके उसका डिटेलिंग करना है. सो दैट इट विल बी योर होमवर्क. यही सेम जो हमने सिंपली सपोर्ट के लिए किया, उसको आपको रिस्ट्रेन की डिजाइन करनी है, रिस्ट्रेन स्लैब के लिए डिजाइन करनी है. यही सेम. राइट, चलो कोई डाउट हो तो बोलो. No, ma'am. No, ma'am. Okay, can you able to do this? Two-way slab design, Yes, distance ma'am. slab design. Yes, ma'am. Same way, only the change is table number 26 instead of table number 27. एंड टॉर्शन एनफोर्समेंट की अलग से डिजाइन करनी है. ड्राइंग भी ऐसे ही बनाना है. फर्स्ट यू नीड टू डिवाइड मिडल स्ट्रिप एरिया, एज स्ट्रिप एरिया विद द डायमेंशन, और उसके बाद आपको टॉर्शन एनफोर्समेंट का एरिया डिफाइन करना है. सो दिस इज ऑल विद द डिज़ाइन ऑफ कन्वेंशनल स्लैब. ये कन्वेंशनल स्लैब की डिज़ाइन है. आपको फ्लैट स्लैब भी है सिलेबस. सो दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल स्लैब डिज़ाइन. वन वे एंड टू वे स्लैब आइसोलेटेड स्लैब है, डिसकंटिन्यूअस स्लैब है, सिंपल स्लैब है. राइट, नाउ नेक्स्ट lecture we will start with design of retaining wall. Now our elementary design is finished. Elementary design of beam, elementary design of slab, वो सब हमने कर लिया. Now we will going to start with structure design. So before starting with structure design, you need to keep your fundamental clear about the elementary design. Minimum requirement of steel, maximum requirement of steel, right? Load acting on the member, फिर spacing का क्या criteria है. All the fundamental things should be clear before starting with the structure design, right?